Good morning, students. Today we are going to discuss about types of microorganisms. In previous classes, we discussed about microorganisms and some types of microorganisms like algae, fungi, fungus, protozoa, bacteria, virus, etc. There are different types of microorganisms and they are responsible for some chemical changes in the substance like the conversion of milk into curd. The conversion of milk into curd is carried out by bacteria, means lactobacillus. And here we will discuss about types of microorganism. So here different types of microorganisms are present. So microorganisms are divided into 5 categories. First one is algae, second one is fungi, and third one is protozoa, bacteria and a virus. And we have to study these 5 types of microorganism, about the 5 types of microorganism. So we are going to study about algae. First we will study. So algae are usually found in water and a moist place, means any place have moist and water, so there are chances to create algae. You must have observed that in wet moist places ponds are in accumulated water of rivers there are some green or gray layers. These are algae which are also called slimy mold. Algae are usually green, red or brown, and the factor means substance which are responsible for the color of any algae or plant we discussed in previous classes. So their color is due to the presence of some chemical, means pigment, and write the name of pigment present in green algae. So in previous class we discussed the chlorophyll. Three types of pigments are present. First one is chlorophyll, and the second one is chloroplast, and the third one is leucoplast. So here the pigment responsible for the green color is the chlorophyll, and the chlorophyll is responsible or participated in the photosynthesis process in which plants are produced food in presence of chlorophyll and sunlight with the help of water and carbon dioxide atmospheric. सो एल्गी, तो एल्गी देखते हैं कि एल्गी होता क्या चीज़ है। कुछ जगह पे जैसे देखते हैं कि पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, कुछ जगह है जहाँ पे जैसे वाटर अगर प्रेजेंट है तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कुछ टाइम मतलब बहुत दिनों बाद देखते हैं कि ऊपर में एक लेयर वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग काई नाम देते हैं। तो उसी काई को यहाँ पे नाम दिया गया है एल्गी। यहाँ पर साइंटिफिक नेम दिया गया है, साइंटिफिक नेम नहीं, साइंस में उसका नाम दिया गया है एल्गी। तो ग्रीनिश जो बनता है जनरली ग्रीन कलर का हम लोग देखते हैं, और दे आर जनरली ग्रीन एंड ग्रे कलर्स। सो वाटर के ऊपर में एक लेयर बन जाता है बहुत दिनों तक, अगर वाटर में एक जगह पे रुकता है तो उसी को नाम दिया गया है एल्गी। और एल्गी जनरली उसी जगह पे रहेगा जहाँ पे मॉइस्चर एंड वाटर रहेंगे। मॉइस्चर मतलब कुछ अमाउंट में वाटर रहेंगे जो माहौल को एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देंगे, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे एल्गी जनरेट हो सकता है, एल्गी वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। और ये देखेंगे एल्गी जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है स्पायरोगायरा, कॉलरा, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। तो डिफरेंट टाइप्स का एल्गी जब होता है तो उसका शेप भी डिफर होगा। सो यहाँ पे कुछ एल्गी का डायग्राम दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ दिया हुआ है, गिविंग कैटल्स फूड टू एनिमल्स टू गेट मोर मिल्क फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, स्पेशल कैटल फूड इज गिवन टू देम। फॉर एग्जांपल सन इज ए मिक्सचर ऑफ चेप, ऑयल केक, जगरी एक्सेट्रा विच इज सोक्ड इन वाटर
overnight, the microorganisms react with food and materials in the kettle food and increase the nutritive value of the food। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा मिक्सचर बन रहा है, जो हमारा मिक्सचर मटेरियल बन रहा है, वहाँ भी अगर न्यूट्रिएंट का अमाउंट अगर बढ़ाना है तो वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद है अगला फंगी। फंगी देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन मोल्ड which appear on pickles, jams, fruits, vegetables, wet clothes, old shoes, walls, woods, etc. in the form of yellow, black, grey spot. Actually, they are different types of fungi। तो हम यहाँ पे देखते हैं फंगी मतलब कुछ चीज़ को, जैसे कि ये पिकल्स हो गए, अगर एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, कुछ टाइम मतलब कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक वहाँ पे नेटवर्क टाइप से बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जाली टाइप से। कभी वाइट कलर का होता है, कभी कुछ और कलर का होता है, तो ऊपर में जो जाल टाइप से बनता है उसी को नाम दिया गया फंगस। सो यहाँ पे देखेंगे फंगस में कई एग्जांपल है, जैसे कि ईस्ट दे दिया है और ये राइजोपस दिया है, मशरूम दिया है। तो मशरूम जनरली के देखते हैं ये प्याल पैरे में होता है। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ फंजाई। So here come let us grow fungi and them observe them minutely। तो यहाँ पे देखें कुछ एक्टिविटी दिया गया है, उस एक्टिविटी के थ्रू हमें फंगस प्रोड्यूस करना था। तो यहाँ पे देखेंगे अगर एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं, तो when we keep bread on atmosphere for some days, then we will see here फंगस विल जनरेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेड को खुला छोड़ने पर कुछ दिनों बाद उसमें ये फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक लेयर जाल टाइप से बन जाता है। तो उसी जाल टाइप से जो है बना रहता है उसी को बोलते हैं फंगस। तो यहाँ पे हमें इस ब्रेड में अगर फंगस जनरेट कराना है, फंगस प्रोड्यूस कराना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मॉइस्चर देना कंपलसरी है। मॉइस्चर रहेगा तभी वो फंगस बनेगा, वो प्रोड्यूस होगा। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फंगस प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। सो वाटर एंड मॉइस्चर आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। सो यहाँ पे देखेंगे कुछ टेबल दिया हुआ है, ये एक्टिविटी खुद करना है। जैसे दिया गया पर्टिकुलर कंडीशन कि व्हाट आर द कंडीशन टू फेवर द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड व्हेन इन फंगस मच लेस नील। तो यहाँ पे देखेंगे ड्राई पीस ऑफ ब्रेड ओपन एंड केप्ट इन लाइट, ओपन एंड केप्ट इन डार्क, क्लोज्ड एंड केप्ट इन लाइट, कि बंद कर देना है, लाइट के प्रेजेंस में रखना है। उसके बाद है क्लोज्ड एंड केप्ट इन डार्क। तो डिफरेंट टाइप का कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ड्राई प्लेस एंड ओपन द केप्ट इन लाइट। तो उसको ओपन रखना तो ज़रूरी है, ब्रेड को जहाँ भी रखेंगे ओपन रखना कंपलसरी है, लेकिन लाइट रहे ना रहे उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करना है तो वहाँ पे लाइट एसेंशियल नहीं है। तो ओपन रख दो, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और वाटर होना चाहिए, चाहे वो लाइट रहे या ना डार्क रहे, ठीक है। ओपन, तो ड्राई पीस शुड बी केप्ट इन ओपन प्लेस, देन confirm the chances to produce fungus in the bread। यहाँ पे देखें कुछ लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव हर्ड एंड सीन दैट इन इडली एंड डोसा, इडली एंड डोसा एंड जलेबी आर जलेबी प्रिपरेशन, कि जब बनाते हैं इडली डोसा जलेबी, एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड ए पर्टिकुलर थिंग इज एडेड टू द बटर, कि बटर में एक पर्टिकुलर थिंग जो है, पर्टिकुलर चीज़ को ऐड करते हैं और उसी चीज़ में रहता है, दिस इज कॉल्ड ईस्ट और खमीर, ठीक है। ईस्ट और खमीर के नाम से जाना जाता है। तो जब भी इडली डोसा और जलेबी बनाते हैं वहाँ पे देखेंगे कि एक चीज़ ऐड किया जाता है, तो वहाँ पे तो ईस्ट को पकड़ के नहीं करते, बाकी जो भी सब्सटेंस ऐड करते हैं उसमें ईस्ट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देखेंगे द नेचर ऑफ ईस्ट इज सेप्रोफाइट फंगी विच इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड एयर। से ईस्ट भी एक फंगी है जो कि सॉइल और एयर में प्रेजेंट होता है। दिस कैन बी केप्ट इन ड्राई फ्राम फॉर ईयर्स अस पाउडर, ठीक है, और स्मॉल पिल्स। तो यहाँ पे इस ईस्ट को देखते हैं कि पाउडर के फॉर्म में भी लेते हैं
और ड्राई पाउडर अगर फॉर्म में अगर लेते हैं तो उसको बहुत दिनों तक हम लोग रख सकते हैं। दिस इज इजली अवेलेबल इन मार्केट समटाइम्स इवन विदाउट एडिंग ईस्ट। इन इडली एंड डोसा द बटर राइसेस। तो देखते हैं कि वहाँ पे अगर ईस्ट ना मिलाया जाए तो इडली डोसा हमारा रहेगा वहीं पे सेफ रहेगा। नाउ राइट द आंसर टू दिस इन योर कॉपी। सो वाई इट इज नेसेसरी टू एड ईस्ट इन द बटर ऑफ इडली डोसा एंड ब्रेड। सो यहाँ पे लिखना है कि बटर इडली डोसा का क्या मतलब ज़रूरी क्यों है, मीन्स ईस्ट ज़रूरी क्यों है बटर इडली डोसा में। एंड द सेकंड वन इज वाई डज द बेटर राइस इवन व्हेन ईस्ट इज नॉट एडेड। तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग एक्टिविटी में। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5, यहाँ भी कुछ दिया हुआ है एक्टिविटी जो कि फंगस को प्रोड्यूस कराया जा रहा है। फंगस मीन्स यहाँ पे ईस्ट को लेकर के कराया जा रहा है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे देखें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ द वाटर ऑफ द टैंक इज नॉट क्लीन फॉर ए मंथ, टेल व्हाट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर पानी के टंकी को, वाटर टैंक मीन्स पानी के टंकी को कुछ महीने उसे साफ़ नहीं किया हुआ है तो क्या इस टंकी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा कि इफ़ द वाटर टैंक इज नॉट क्लीन्ड फॉर सम मंथ देन एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी फाउंड इन वाटर टैंक। तो अगर साफ नहीं होगा तो एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ये सब वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आंसर होगा कि वहाँ पे ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी प्रेजेंट। सेकंड है वाई कैन नॉट वी सी द अमीबा एंड पैरामीशियम विथ अवर नेक्ड आइज। तो यहाँ पे आंसर होगा कि द साइज ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम आर सो स्मॉल therefore we cannot see the amoeba and paramecium by naked eyes. It can be seen only by the use of simple microscope or electron microscope. And in microscope generally microscope is used to increase the size of objects. कि माइक्रोस्कोप से जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है। मतलब अगर वो 2 टाइम्स से बड़ा होगा तो 2 टाइम्स को 1000 टाइम्स से बड़ा करके दिखा देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीबा और पैरामीशियम को हम क्यों नहीं देख सकते। तो अमीबा और पैरामीशियम का जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उसको खाली आँख से नहीं देख पाते। उसको देखने के लिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सिंपली यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है वाई डू लेदर सोज गेट्स मोल्ड्स इन रेनी सीजन। कि वहाँ पे देखते हैं लेदर में, बरसात के दिनों में देखते हैं लेदर में मोल्ड्स जो है हो जाते हैं, क्यों। तो आंसर होगा यहाँ पे कि इन रेनी सीजन देयर आर मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। सो देयरफॉर the leather shoes get molds in the rainy season, and in the rainy season due to the presence of moisture water there are favorable condition for the growth of fungus, and the nature of fungus are parasites are saprophyte. पैरासाइट मतलब देखेंगे यहाँ पे खाना दूसरे से लेता है। एंड दे molds are develop on shoes are saprophyte। यहाँ पे को देखते हैं पैरासाइट या फिर सेप्रोफाइट होता है। एंड ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन इट डेवलप्स ऑन इट गेट्स मॉइस्चर एंड फूड बोथ। तो अगर शूज़ को कुछ टाइम के लिए हम लोग छोड़ देते हैं रेनी सीजन में, मतलब रेनी सीजन में देखते हैं कि जो हमारा पुराना वाला शूज़ होता है उसमें कुछ फंगस लग जाता है, तो आंसर वही होगा कि इन रेनी सीजन वहाँ पे देखेंगे कि फंगस के ग्रोथ के लिए वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर रहता है सही हो जाता है, वहाँ पे मॉइस्चर भी मिल जाता है और वाटर भी मिल जाता है और वो ईजिली जनरेट वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद है वाई इज इट नेसेसरी टू ट्राई कोरिएंडर, क्यूमिन सीड्स एंड
pulses before lighting them, before storing them. कि वहाँ पे जैसे कोरिएंडर है, क्यूमिन है, क्यूमिन सीड्स है, कुछ दाल है, इसको स्टोर रूम में रखने के पहले उसको सुखाते हैं. सो वाई इट इज नेसेसरी टू ट्राई. तो आंसर होगा if coriander, cumin seeds and pulses contain some water, means moisture, then definitely there will be chances to growth of some microorganism, and microorganism डिग्रेड द नेचर ऑफ पल्सेस. मतलब वहाँ पे अगर कोरिएंडर लेते हैं, क्यूमिन सीड्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, अगर वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा तो कंफर्म है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए कंडीशन फेवर कर लेगा, और फेवरेबल कंडीशन होने के वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस होकर के उसको ख़राब कर देगा. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू ड्राई बिफोर स्टोरिंग देम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली एल्गी आर नॉट पैरासाइट, एक्सप्लेन द रीजन. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एल्गी जो है हमारा पैरासाइट नहीं है. पैरासाइट मतलब दूसरे से भोजन लेना, खाना लेना. सो एक्सप्लेन द रीजन. तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बोला जा रहा है कि एल्गी आर नॉट पैरासाइट, दैट मीन्स algae contain some pigment like chlorophyll, and chlorophyll is the pigment which is responsible for photosynthesis in green plant. So algae में देखते हैं कि वो एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रखता है, और उस पिगमेंट में इतना पावर होता है कि वो लाइट के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से CO2 और वाटर ले करके, वाटर मीन्स रूट से वाटर ले करके, मीन्स ज़मीन सोइल से वाटर ले करके, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके क्लोरोफिल जो है फूड बना लेता है. तो यहाँ पे कोई भी प्लांट अपना खुद फूड बना लेता है, मतलब उसको पैरासाइट कैसे बोलेंगे. तो ये जो है सभी के सभी एल्गी, मीन्स यूजुअली एल्गी आर नॉट पैरासाइट. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआ. थैंक यू.